Very good evening to all of you students. बेटा I'm going to quickly revise mole concept for you all. ठीक है बेटा, आगे बढ़े क्या बोलो? चलो. Now in mole concept beta, first of all, basically in this chapter beta, maximum numericals they are going to ask. Maximum numericals they are going to ask. Okay. Definition में बेटा सिर्फ आपको क्या करना है? Definition में in this chapter बेटा you will study the law. ओके. एवोगैड्रोस लॉ एंड गay-Lussac's लॉ का डेफिनेशन आपको आना चाहिए. वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन आना चाहिए आप लोगों को. राइट. तो वो आप लोगों को आना चाहिए, वेपर डेंसिटी और वो सब. ठीक है ना. बच्चे अभी भी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं. एडमिट ऑल, एडमिट ऑल, एडमिट ऑल, एडमिट ऑल, एडमिट ऑल, एडमिट ऑल, एडमिट ऑल. वंश और सखी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं क्यों? चलो बेटा, एनीवेज आएंगे बेटा वो लोग. मैंने एडमिट ऑल तो कर दिया है. ओके. और कोई आया है क्या? Okay, chalo beta. So in this chapter, beta, the definition, if they ask, the definition will be of only two things. Okay? और डेफिनेशन तुमको किसका पूछेगे? गay-Lussac's का पूछेगे और इसका पूछेगे. किसका पता है क्या? एक मिनट, इसको साइलेंट में डालने दो मुझे. एवोगैड्रोस का. ठीक है. चलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हेन विल दे टॉक अबाउट. अच्छा बच्चे जो लोग लेट अभी आए हैं ना, पहले सुन लो. टुमारो ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेक रिवीजन सेशन. आई एम गोइंग टू टेक टुमारो 3 रिवीजन सेशन. ठीक है. मैं आपको टाइमिंग आज रात को सब डाल दूंगा ग्रुप में. ठीक है. सो टुमारो आई विल बी डूइंग, पहले बच्चों का कॉमन डिमांड है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का, तो आई विल डू दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड देन आई विल डू इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके. एंड फिर देन ऑफ कोर्स पीरियोडिक टेबल और वो सब हम लोग करेंगे बेटा. आ जाते बेटा. चलो. स्टार्ट. ओके. एटम बेटा, दे विल आस्क यू अबाउट एटम, एटॉमिक मास, दैट इज फाइन. आरएएम बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा. वेन एवर दे विल गिव यू आरएएम बेटा, डायरेक्टली दिस वैल्यूज विल बी गिवन. नाउ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट दे विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट बेटा? एटॉमिसिटी. बेटा यहाँ पे O2H2, so एटॉमिसिटी इज 2. देन बेटा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, आरएमएम. हाउ टू फाइंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? दे विल गिव यू बेटा दिस फॉर्मूला. कार्बन डाइऑक्साइड का आरएमएम ढूंढो बेटा. तो हाउ टू फाइंड बेटा? कम ऑन. How to find the RMM? You should know the formula. Now in carbon dioxide, carbon is 1. Oxygen is how many times beta? 2 times. So एक carbon है, दो oxygen, and this weight will be given to you. So just substitute it. Easy, right? If I tell you to write for H2SO4, so hydrogen लिख देने का पहले, then what you will write? Sulfur, oxygen. How many times hydrogen is there? 2 times. Sulfur is 1 time. Oxygen is 4 times. Clear? So 2 into 1 plus this, and then values, these values you will substitute. Where you have to be very careful when there is bracket. Suppose if I tell you ammonium sulfate, if I tell you what ammonium sulfate, so you should know the formula of ammonium sulfate. So ammonium valency is 1 plus, this is 2. So crisscross. So you get ammonium sulfate. But now here, whenever there is this bracket beta, you have to be very careful. This is 2. So 2 into N. H is how much? 2 into 4, 8H. Sulfur is only 1, oxygen is 4, and these values are given, so you have to just substitute them. Is it clear? Now, beta, whenever they say a dot wala, this is very, very important. Whenever they say dot 5H2O, so you have to add that. Basically, this part you are going to add 5H2O. अभी मैं तुमको एक ट्रिक भी बता देता. कभी भी वाटर होगा तो 5 into 18, मतलब वाटर की जगह पे you will substitute 18. Suppose if they give 7, then 7 into 18. Clear, right? So whenever this dot water is there, you will add it separately, and that will be basically 5 into 18. Can you see this? Copper कितना था 1, sulfur कितना था 1, oxygen कितना है 4, right? So substitute the values. These values will be given. Okay. In this, if you see, hydrogen was how much beta? 2 times. H2 में देखना बेटा. And oxygen was 1. So we substituted. This dot water means जितना भी number होगा, we will multiply by 18. Can you see? Water will be always 18. And you add them up, you will get this. So this was all about your molecular mass. Molecular mass, how to calculate, we have done in our lower standard also. Remember beta, you have done in our ninth grade. Then we have done how to find percentage. Okay beta, they will ask you to calculate percentage. Now percentage, how to calculate percentage? Suppose I am giving you this numerical. Calculate the percentage of carbon and carbon oxygen in carbon dioxide. Okay, so both we have to calculate percentage. So first what you will do beta, you have to calculate RMM of carbon dioxide. Carbon dioxide ka RMM you can find 1 into carbon and 2 oxygen. Can you say this beta? Substitute the values.
Then beta, what you have to do? Suppose if I want to find percentage of carbon, in my formula, carbon is how many time? Only one time, na? So 1 into atomic mass of carbon upon entire RMM. Can you see? Upon RMM of CO2. Okay. So this is how you'll do. One carbon tha na beta and entire upon RMM. So 12 upon 44 into 100. So you'll get the answer. For oxygen, how many times oxygen is there beta? Two times, na beta? Can you see? So I'll write 2 into oxygen. Can you see this? Upon entire carbon. बेटा इफ देर आर ओनली टू कंपाउंड तो ये खाली एक्टिंग करने का, एक का आपने कैलकुलेट किया तो ये दूसरे का क्या होगा? 100 माइनस दिस. ओके, राइट. So this is how you calculate percentage. Now, beta, this is very important numerical. They will ask you to calculate, find the percentage of water or percentage loss of mass of water when blue vitriol is heated. So what is blue vitriol? This. If I heat this water molecule will go. So can you see 5 water molecules? So this is my loss in mass. So how to calculate this, beta? First, you will calculate पूरे CuSO4 का RMM. Look, beta, whenever this 5 water means 5 into 18 will do. Are you getting it? And dot means we have to add. So पूरे का RMM कितना है मुझे? 250. Can you see this? Right? I got 250. Then beta, what we have to do, beta? How many water molecules are lost? 5. So how much will be percentage of water or percentage loss of water? You will write, beta, 5 into water. Okay, you will write 5 into water. Clear? No, they will not give you the formula of blue vitriol. Okay, they will not give you the formula of blue vitriol. Sometimes they may give also. Okay, so 5 into water upon CU. Generally, they give, okay, if blue vitriol or I know green vitriol is there. So 5 into water upon entire. So 5 into 18 upon entire was how much? 250. You have to multiply by 100. So you get the answer. So simple it is. Easy. Clear. So have you understood how to do the numericals which are based on percentage, RAM and RMM, right? Clear? Then beta, few things I'm going to teach you. What is gram atom? Now we are going to go for the next formula. What is the next formula? Gram atom. What we are going to do, beta? Gram atom. Okay. दादर बैच बच्चे आए ना? हाँ. कौन इंग्लिश में अभी तक? Still your English class is going on? No, na? No, sir, it's over. Okay. Gram atom. Gram atom means what? How to calculate gram atom? Given mass upon relative atomic mass. Atom रहेगा तो below it will be atomic mass. So how you are going to do this numerical, beta? They will give you the numerical. Find number of gram atom in oxygen. Oxygen. So how much is the given mass? 8 gram. And what you have to take, beta? RAM. We have to divide by RAM, na? So RAM of oxygen is what? 1. Sorry, 16. So you'll substitute, beta. Given mass, how much? It was 8. RAM is how much? 16. So 8 by 16. So how much you will get? 0.5 gram atoms. Is this clear? Right. Then, beta, we are going to go for gram molecule. In gram molecule, what changes will do, beta? In gram molecule, what will be given mass upon RMM? Now, beta, always remember, whenever you have to find RMM in exam, if you want to find always RMM, if oxygen is written, so you will take oxygen as O2. ये मिस्टेक करते बच्चे लोग. डोंट टेक ओनली O2. नाइट्रोजन विल बी इफ दे से RMM, बेटा. N2. Chlorine will be what? Cl2. Hydrogen will be what? Hydrogen will be H2. So you'll always have to take their how much whatever is their atomicity whenever we are doing in the molecular form. So now generally what common mistake students will do if they say gram molecule. If I have written oxygen, I won't write this way O2. I'll write it like this way. Oxygen. So beta here below what generally students they take O16 only. But beta here it is molecular mass and oxygen is in which form? O2. Clear? So what is the formula? Given mass upon molecular mass. So given mass is how much? 16. They have given here. Can you see this? 16. But what is RMM of O2? So O दो बार है ना बेटा, ये याद रखना. तो 2 into O. So our answer will be 0.5 gram molecule. Is this clear? So, Yeah. तो आपने लास्ट क्वेश्चन में 16 क्यों लिया था?
किसमें? अच्छा, लास्ट लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या में। पूछा था बोल बेटा? ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला है बोलो? ग्राम एटम था ना, तो अपॉन क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ बट सर आपने O2 नहीं कंसिडर किया। हाँ लेकिन एटम, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एंड व्हाट डू यू कंसीडर बाय मॉलिक्यूलर? टेल मी। अरे बोलना भाई मेरे। समझ गया। एटम मरेगा तो अकेला एटम, मॉलिक्यूल होगा तो बेटा O2 होगा ना। ओके। यहाँ पे बेटा क्या दिया था? ग्राम एटम, तो आई एम टेकिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इज ओनली फॉर वन एटम, so I wrote 16 here. But if they would have asked gram molecule, तो आई एम टेकिंग हियर बिलो डेफिनेशन में, फॉर्मूला में नीचे एटॉमिक मास नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है, तो आई विल टेक O2। अब समझा बेटा? क्लियर? So यस look सर। beta, we have studied relative atomic mass, molecular mass, percentage composition, gram atom and gram molecule. Is this clear? Gram atom and gram molecule. Clear? Now beta we go to the next part. Okay. We'll go to the next. I want to do first vapor density. Where is vapor density? Wait. First I'll do vapor density. Vapor density नहीं है, कोई बात है, कोई बात है, कोई बात नहीं। अरे वेयर वॉज दैट? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल के बाद में बेटा हम लोग क्या करेंगे बताया क्या? वेपर डेंसिटी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा? वेपर डेंसिटी। ओके। हाँ या बेटा, आई विल डू दैट बेटा, डोंट वरी। वेपर डेंसिटी, व्हाट इज योर वेपर डेंसिटी? Look, beta, I have given you these notes, beta. In these notes, beta, you will just read definition and laws, okay? And don't do this unsolved numerical. You will watch only solved example. You will watch only solved example. Okay? Now I'm going to teach you first vapor density. Let me do. Yeah, here it is, vapor density. What is vapor density? Vapor density. Look, they will ask this. Vapor density ka definition. Vapor density is the ratio of mass of certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen. Clear? So this is the definition and this is the formula. Mass of certain volume of gas upon mass of same volume of hydrogen. This is your vapor density. Mass of certain volume of gas. It is the ratio of mass of certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen at standard temperature at same under same condition of temperature and pressure. Same condition of temperature and pressure. Now, what numerical they will ask based on this? This is very important numerical for vapor density. Okay, I'll show you this numerical. Look, this one, this numerical. Sir, you have to take hydrogen as H2 Yes, or H2 only, na beta, molecule, na it is. Okay, so now look, okay. beta, what is written in this definition? This numerical. A gas. देखो बेटा, ये था बेटा, ये ना मेरा सिलेंडर था, इसके अंदर पहले कितना मैं हाइड्रोजन, हाउ मच हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाला। हाइड्रोजन का वेट कितना था बोलो? 50 ग्राम्स। तो वॉल्यूम ये सेम है। अब मैंने इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला? आई इंट्रोड्यूस गैस ए। आई इंट्रोड्यूस व्हाट बेटा? गैस ए। गैस ए का कितना मास है बोलो बेटा? 200 ग्राम्स। देन आई इंट्रोड्यूस व्हाट बेटा? गैस बी। मैंने दूसरा गैस डाला अंदर। गैस बी इज हाउ मच बेटा? 500 ग्राम। दोनों अभी तीनों का वॉल्यूम सेम ही था ना, पहले अंदर मैंने हाइड्रोजन डाला था कि नहीं? तो व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी? तो फॉर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस वन आई डू वेपर डेंसिटी मींस वीडी ऑफ गैस ए। व्हाट इज द फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, टेल मी, गैस ए अपॉन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, सॉरी, मास ऑफ वॉल्यूम यार,
सो सॉरी 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 सॉरी। अरे यार ये क्या हो गया? सो सॉरी। हाँ, what is the formula of vapor density? It is the ratio of what beta? Mass of certain volume of gas ना, तो mass of volume of gas A upon mass of same volume of hydrogen. Tell me, gas A ने कितना ऑक्युपाई किया था? बोलो, tell me how much it was? 200 gram. And how much same hydrogen was holding? अरे इसके अंदर बेटा मैंने पहले हाइड्रोजन डाला तो कितना था? 50 ग्राम। उसको निकाल दिया। अंदर मैंने क्या डाला? विच व्हाट आई एडेड? गैस ए। गैस ए भी सेम वॉल्यूम बट मास वाज हाउ मच बेटा उसका? 200 ग्राम। सो हाइड्रोजन इज हाउ मच? 50। सो हाउ मच वेपर डेंसिटी आई विल गेट हियर? 200 अपॉन 50 इज हाउ मच? 4 ना? हेलो। Then what they have told you Yes, to, yeah, yes. then they have told you to calculate molecular weight. Molecular weight of gas A. A, what is the formula of molecular weight? 2 into vapor density, right now? So 2 into 4. So how much I'll get? 8 grams. Then how will you do the next part? Vapor density of gas B. So how much volume, what was the mass of gas B? Tell me. 500 upon volume of hydrogen. So how much I'll get? 10. Therefore, mass of which mass? Sorry, molecular mass. The RMM they have told, na beta. So RMM of gas B is 2 into vapor density. So 2 into 10. So how much answer I'll get? 20 grams. Is this clear? This molecular weight means RMM. You can take a screenshot of this if you want. Chalo beta, done this. Now we go to the next part, that is molecular formula and empirical formula. Molecular formula and empirical formula. Chalo fatafat. Done. Okay. Now beta, we all know beta, hello, how to find molecular formula and empirical formula. Chalo beta. First one. Molecular formula is MF I'll use and empirical formula I'll use EF. First one is what beta? Benzene. So benzene beta, this is the structure you should know because in organic chemistry they may ask. You should make a hexagon and you'll write here carbon, carbon, carbon. Right? Alternate single double bond you have to make. And each carbon should have 4 bonds. Can you see? Right? So what is the molecular formula of benzene? Tell me. C6H6. Now which all different element were present? C and H. Take a ratio 6 is to 6. So 1 is to 1. So now how many CH is there beta? How many C? Bolo beta 1 and H is 1. So this is my empirical formula. So empirical formula is the simplest whole number ratio of the different atoms present in a molecule of a compound. It is the simplest whole number ratio. Then beta we go for acetic acid. Acetic acid if I write, what is the molecular formula? CH3, Chatriku. How many C? 2C. How many H? 3 plus 1, 4. How many O? 2O. Take a ratio. C is to H is to O. So 2 is to 4 is to 2. So what? 2 ones are, 2 twos are. So now how many C is there? Only 1. H is 2. O is 1. So CH2O. Is this clear? This is the empirical formula. Then we go for glucose. Glucose molecular formula is what? C6H12O6. Take a ratio 6, 12, 6. 1 is to 2 is to 1. So what you'll get? CH2O. Is this clear? Right. Chalo. We go for water. Hey beta, in water beta, if you see nothing is going to get cancelled. This was 2 and 1 only. So molecular formula can be equal to empirical formula. Now in this process, entire process beta, if you see what we got, if I wanted to write molecular formula, relation between molecular formula and empirical formula, if I want to derive, so look beta, we did this. If you see here beta, what we used to get,
This was my molecular formula and this is my empirical formula. So I'll multiply this by which number to get this? Tell me. अरे ये C6H6ACH को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? अरे बोलो। 6. 6। 6. इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2. 2। 2. इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6. 6. इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1. 1। तो बेटा ये नंबर आप देख रहे हो बेटा, ये हमेशा होल नंबर आ रहा है। इज इट अ फ्रैक्शन? इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन बेटा। और ये नंबर सेम होगा क्या? जरूरी नहीं है। सो कैन आई से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेयर n इज व्हाट? होल नंबर। हाउ टू फाइंड n? दैट आई टीच यू। टिल हियर एनी डिफिकल्टी टिल हियर? टेल मी। राइट? In exam beta, what they can ask, they will give you one molecular formula and they will tell you to write the empirical formula. Will you be able to do it? You have to just take ratio. You have to just take what? Ratio. Done. Then beta, we did the formula. For what we did, tell me this. This is very important. This you should know. Molecular formula is equal to n into empirical formula. N is what beta? Molecular mass upon empirical mass. RMM is what? 2 into vapor density. What is vapor density? We have already studied. Acha beta, can I substitute instead of RMM? Can I substitute this 2 into vapor density? Instead of RMM, can I substitute this? To put this here. Yes. So what I'll get? N is equal to 2 into vapor density upon empirical formula weight. Is this clear? Easy? Right? Now, in exam, they will either tell you to find empirical formula. If they tell you to find molecular formula beta, then you will have to calculate N. N, how you get N? RMM upon empirical weight. Means molecular mass upon empirical formula weight. Empirical formula you will get from the table. If RMM is not given, you can directly find 2 into vapor density. Okay? Now what type of numerical they will ask here? Chalo beta, aa jate. Find empirical formula of an organic compound. This. So first what you have to do? First you have to calculate total percentage. क्या total percentage 100 है कि नहीं पहले देखने का. Total कितना है बोलो? Carbon plus hydrogen you do. So how much I'll get beta? 40 plus empirical formula and empirical formula weight is different beta. Vyom beta, I'll teach you that. Don't worry. Percentage of carbon and percentage of hydrogen. How much it is? 40 plus 6.66. I'll get what? 46. Is this 100 beta? No, no. If it is total percentage is not 100. Total percentage is not equal to 100. Therefore, oxygen will be present. Remaining will be oxygen. Therefore, oxygen will be 100 minus total. So how much is 100 minus total? 100 minus 46.66. So this will be how much beta? 53.34. Clear? This is the first thing you will do. Then after this beta, what we have to do? We have to make a table. अच्छा, it is not necessary always oxygen होगा. अगर ये total 100 होता तो oxygen would have been absent. Clear? Now let us go to the next part. चलो अब बेटा है ना, हम लोग को टेबल बनाने का. टेबल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे बेटा? देखो टोटल फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन था? कार्बन. आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी. कार्बन, hydrogen, oxygen was not given but we calculated. How much was percentage of carbon? 40. This was 6.6. This we calculated. Atomic weight will be always given. This is 12, 1 and 16. अब क्या करने का बेटा? Atomic ratio. How to find atomic ratio? Percentage composition. This divide by this. देखो बेटा वही किया ना मैंने. 40 by 12, 6.66 by 1, 53 by 16. And then I calculated. I got this, this and this. फिर क्या करने का? लिसन केयरफुली. रिपीट दिस. ये जो आंसर आया ना यहाँ पे लिखो, ये आंसर इधर पे लिखो, ये आंसर इधर पे लिखो. नाउ इन तीनों में बेटा सबसे स्मॉलेस्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट इन दिस? इन ऑल दिस थ्री, विच इज द स्मॉलेस्ट? 3.33. 3.33. हाँ, तो दैट स्मॉलेस्ट विल बी, you have to divide all by the smallest. Look, this is what I have written. Atomic ratio upon least atomic. So who was the least? 33 by 33. सपोज बेटा ऐसे मैं तुमको बताता, अगर यहाँ पे मुझे 2.22 आता तो मैं पूरे को किससे डिवाइड करता? 2.22 से. आर यू गेटिंग इट? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट ना बेटा.
So now beta, what answer I got here? 1, 2 and 1. So this will be, अच्छा, then we have to do nearest whole number. Beta 1 के लिए nearest whole number will be 1 only. 2 के लिए 2 only. 1 के लिए 1. But suppose if this would have been 1.2, so you would have written approximately 1. Suppose this would have been beta 1.8, तो मैं इसको approximately 2 लिख देता, या 1.9 होता तो approximately 2 लिख देता. क्लियर है? तो कितना आप नेग्लेक्ट कर सकते हो? हाउ मच यू कैन नेग्लेक्ट? प्लस और माइनस 0.2, प्लस और माइनस, you can neglect up to plus and minus 0.2. Yeah, Advait, tell me. So if it's 0, if it's 0.5, then So that I'm telling you, na, beta. So first you can neglect up to this. Now suppose if I would have done a numerical and I would have got, suppose say, एक का 1.5 आया, एक का 2 आया, एक का 1 आया. So now what you have to do, beta? This 1.5, I cannot take it as 1 because this is 0.5, na? So what you have to do? You have to multiply to get the nearest whole number. So I'll multiply this by 2. So what I'll get? 3. But if you multiply 1, भले ये whole number हो, then also you have to multiply. एक को अगर multiply किया तो सबको multiply करने का. क्लियर? एक को मल्टीप्लाई किया तो सबको करने का. या बेटा 2 डेसिमल क्या 1 डेसिमल तक किया तो भी चलता है, ठीक है ना बेटा? 1 डेसिमल तक किया तो भी चलेगा. अगर कोई बोलेगा सर अगर 1.3 आता तो, और ये 1 होता ये 2 होता, तो क्या करते हैं? 1.3 को भी, दिस इज 1.3, सो विच इज द नियरेस्ट होल नंबर? 1.3. अगर मैं इसको 2 से करता तो 2.6 आता है, तो आई कैन नॉट टेक So दैट. we should multiply by 3. Yeah, I will multiply by 3. So I'll get what? 3.9. 3.9 is approximately equal to 4. But if I multiply 1 by 3, you have to multiply all by 3. Are you getting it? Clear? Is this clear to you all? Now, Yes, chalo sir. beta. I'm going to go for the next one. So देखो बेटा, ये अपने को मिल गया. अभी ये फॉर्मूला कैसे करने का? Now, look here. How much C I got finally? How much C I got? Yes. How much C I got? Tell me. 1. 1. This is 2. This is 1. So C1. H कितना मिला मुझे बोलो? 2. O. क्लियर? CH2O. अभी बेटा मैं आपको एक सम करवाता हूँ, चलो आ जाओ. Now we are going to do one sum. Where it is? Here it is. अरे open up. Desktop. Hmm. 10th ICSE test. Sir, what about limiting and excess reagent? उसका कुछ आएगा नहीं ना? सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताऊंगा. डोंट वरी. I will teach everything. अरे what happened? अभी मैंने जितना किया ना उतना मैं ना पूरा पेपर्स बताता हूँ उस पे कैसा आएगा. ओके, नाउ लुक, लेट अस स्टार्ट. आ जाओ. फर्स्ट सम. हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? चलो. ओके, इफ यू सी दिस, व्योम बेटा, व्हाट इज रिटर्न? रीड दिस सम. चलो व्योम, कम ऑन. Find the empirical formula and the molecular formula of an organic compound from the data given below. C is 75.92%, H is 6.32%, and N is 17.76%. And vapor The density is vapor given. density. Yeah, very good, beta. Now, I want to calculate empirical and molecular formula both. Okay, so now, first you will find total. You will find total of these three. What is happening? Total. तो टोटल करोगे तो बेटा ये 100 आ रहा है बेटा. तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा क्या? ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट, नो ना बेटा? If I add these three first, if you add percentage of carbon, this,
and hydrogen and nitrogen, beta, you are getting how much, beta? You are getting 100. Look, beta. Clear? So I'm getting here what, beta? 100. Oh my God, I'm getting 100. Therefore, what? Therefore, oxygen is absent. So first what I'm going to do, I'm directly going to write. Chalo, beta. First what I'm going to write here, carbon is there, hydrogen is there, and nitrogen is there. Carbon was how much, beta? 75.92. This was 6.32. This was how much? 17.76. Carbon atomic weight is 12. Hydrogen is 1. Nitrogen is 14. This was given na here. Can you see this? Then what I'm going to do? Divide. Divide. Are you getting it? सर Yeah. सर एग्जाम में वो टेबल बनाना कंपलसरी है Compulsory है. Compulsory है. ठीक है. If I divide this, you'll get approximately 5.1. Here you'll get 12 5s are 60 ना 12 6 are कितना होता है हाँ सॉरी आपको ये ना you'll get it here 6.33 आएगा 6.3 आएगा बेटा ये this is 6.32 only 14 का ये करेंगे तो बेटा तुमको कितना आएगा पता है क्या 1.23 ऐसा कुछ आएगा बेटा अभी सब में से बेटा क्या करोगे बेटा नाउ टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू डू रिपीट ऑल दैट रिपीट राइट विच इज द स्मॉलेस्ट 1.2 हाँ तो 1.23 तो डिवाइड ऑल बाय 1.23 1.2 भी याद रखोगे तो भी चलेगा मेरा तो ये तुमको क्या मिलेगा 1 ये 12 5 आर 60 12 5 आर 60 होता है कि नहीं बोलो बेटा क्लियर है ना ये 12 ऐसा कर दिया तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5.1 एंड हियर ऑल्सो विल गेट व्हाट बेटा 5.1 अभी नाउ टेल मी बेटा कैन आई राइट 5.1 नियरेस्ट होल नंबर इज व्हाट बेटा 5 और नॉट टेल मी Yes. दिस इज 5 एंड दिस विल बी 1 का 1 ही होगा ना बेटा तो अभी मिला है देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी व्हाट टेल मी C5 H कितना है 5 N कितना है 1 I got empirical formula therefore from empirical formula can I find empirical formula weight I can calculate or not tell me 5C है 5H है 1N व्योम बेटा we have to calculate empirical weight or not tell me Yes, right sir. nitrogen was 14 so if I add this up I'll get empirical weight as how much come on 560 60 plus 5 65 65 plus 79. 14 is how much 79 clear I calculate empirical weight now look I got first empirical formula was asked so I got empirical formula or not tell me now I want to calculate empirical formula so what is the formula of molecular formula is what beta n into empirical formula so I have to calculate n का form n के लिए what I need to know RMM का फॉर्मूला क्या है बेटा 2 into vapor density so how much is vapor density given look here vapor density is given or not tell me 39.5 so if I multiply this then what I'm going to get 79 now can I calculate n is what RMM upon empirical weight Vyom beta empirical weight and empirical formula is two different things from empirical formula I get empirical weight from molecular formula I get RMM so RMM how much I got 79 empirical weight also how much I got this was my empirical weight na beta how much I got 79 so 79 upon 79 is 1 so n ka value how much I got 1 so what I'll do here I'll put here 1 what was my empirical formula C5H5N so what answer I'm going to get C5H5N so my molecular formula and empirical formula is same एक MCQ आ सकता है when molecular formula and empirical formula can be same tell me when your n का value is 1 ये मैंने पूछा था आपको पेपर में पता है कि नहीं बोलो बेटा when molecular formula is equal to empirical formula have you all understood this any doubt please ask me Vyom beta do you have any doubt in this numerical No, sir. okay anyone now so we have done this first one numerical now I want you all to tell me beta you have to do look beta what was the formula for molecular formula was what
EF into N. n into empirical. So if my n ka value is 1, so what I'll get? Molecular formula will be equal to your empirical formula or not. So can I ask you this MCQ? When your molecular formula will be equal to empirical formula when n is equal to 1. Clear? Now I'm going for the next numerical. Okay, I want you all to do this numerical. Come on. So I'm giving you 2 minutes. You try. If you're getting fine, 8th one. Come on, try it. I want you to try, beta. Please try it. It is very easy. इसमें कोई टेबल नहीं बनाना है, डायरेक्ट आएगा. Try it. You will be able to do it. Come on, you can do it. Done, sir. Done? Okay, what is given? Empirical formula is given. How much is empirical formula given? Tell me. अरे देखो ना यहाँ पे दिया है कि नहीं empirical formula? X2Y. X2. X to y. The empirical formula is x to y. So from empirical formula, can I calculate empirical formula weight? बोलो. X कितना है? 2 है. Y कितना है? 1. Yes, we can calculate. Yeah, we can calculate. X का value is how much given? RM is given not 10. Y is how much given? 5. 5. So 20 plus 5. So 25. I got this or not? Tell me. Have they given vapor density? So vapor density is given. So can I calculate RMM? RMM is what, beta? Tell me the formula for RMM. Are 2 into vapor density. 2 into vapor density. So 2 into 25. That is 50. Now, can I calculate N? N is equal to RMM upon 2. empirical weight. RMM is how much? 50. Empirical weight was 25. So how much I got? 2. Now, therefore, can I calculate molecular formula? Molecular formula is what, beta? N into empirical formula. N का value कितना आया मुझे बोलो? 2. Empirical formula is how much? X to y. So we multiply this. So what you will get? अरे 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4. And 2 into y is 2. Clear? Hello? अरे easy or not? Tell me. Yes, sir. Clear? Done, done, done. Done, done, done. If you want, you can take a screenshot of it. फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. चलो, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सबको मिला ना बेटा? फोटो लेना है तो फोटो ले सकते हो. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन. चलो रुद्र बेटा, ये सम कैसे करेगा मुझे बताओ. रुद्र, आर यू देयर? Yes, sir. या क्या बोला है ढूंढने के लिए? Number of gram atom. हाँ, तो ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास. इजी. तो गिवन मास कितना है? 4.6. एटॉमिक मास कितना है? 23. Are you getting it? So what answer you'll get? 0.2 gram atoms. कितना इजी था बोलो? हेलो, इजी ना? राइट? क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट. Done, done, done. You can take a photo if you want or screenshot. You've done all this in the classroom also. Yes. चलो डन.
Now beta we go to the next sum. Okay. चलो, अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा? मैं ना तुम्हारे स्कूल का पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूँ बेटा साथ में, इससे रिलेटेड सम्स ही होगे बेटा. नाउ वी हैव टू गो टू दिस पार्ट. गेलुसेक्स में एकदम एंड में करा होगा बेटा, ठीक है ना बेटा? फर्स्ट विल डू दिस स्टोइक्योमेट्री. अच्छा, व्हेन आई से 1 डजन बनाना मीन्स हाउ मेनी बनाना? 1 डजन बोलेगा तो आपके दिमाग में क्या आता है? 12. 1 डजन ऑफ पेन मीन्स 12 पेन. 1 डजन ऑफ स्पेक्स मीन्स 12. क्लियर है? 1 डजन ऑफ टॉय, सॉफ्ट टॉय मीन्स हाउ मेनी? 12. क्लियर? तो बेटा सिमिलरली whenever we say Avogadro number, whenever we'll say Avogadro number, look, I'm going to do stoichiometry also. All these are related. That is why. Avogadro number, whenever I'll say, what should come to your mind? 6.023 into 10 raised to 23. So Avogadro number of pen means how many pens? 6.023 into 10 raised to 23. Avogadro number of specs means how many specs? 6.023 into 10 raised to 23. Avogadro number of fish means how many fish? 6.023 into 10 raised to 23. Clear? Now he said few things. Remember this. This is very, very important. Let me write first. First we'll see this part. If I take 1 mole of any substance, if you put it on weighing pen, it will be equal to its molecular weight. If I have given 1 mole of a molecule, but if I have given 1 mole of atom, then it will be atomic weight. And if I count in this, how many particles, how many pen I will be able to see? 6.023 into 10 raised to 23. It can be either atoms, ions, or molecule. I'll explain this part, don't worry. And if I try to put all this into one container, if it is a gas, then it will occupy how much volume? 22.4 liters or 22.4 dm cube or 22,400 centimeter cube at STP. I can say ulta also. If I given you 22.4 liter of pen, पेन मतलब कोई गैस है, एक पेन है ना बेटा, गैस है, तो आपको खाली करो एक कंटेनर में, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट pen you will see? 6.023 into 10 raised to 23. If you put that on the weighing pen, how much it will weigh? It will weigh equal to its molecular weight, and it will become, it is nothing but 1 mole. It is nothing but 1 mole. Clear? So these 4 relation are there. First relation is what beta? Tell me. First is mole. Mole corresponds to mass. यहाँ पे number. And this is what beta? Volume. Clear? So in exam they will ask you 4 type of sum. First, what will be given? Mole or mass, mole or number, mole or volume. Or what they will ask you? What they will ask you? Mass or number, mass or volume. Or what relation they will ask you? Number or volume. I'll give you example. If I give you 1 mole of H2, look beta, here it is H2. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया, तो आप उसको वेट पे, उसका वेट विल बी हाउ मच? मॉलिकुलर वेट. हाउ मच इज मॉलिकुलर वेट? 2 ग्राम्स. अभी ये H2 मॉलिक्यूल दिया ना बेटा, तो हमने मॉलिक्यूल्स, so दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 6.023. बट इफ आई टेल यू इसमें एटम कितना है, ये हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम है ना, तो 2 इंटू ये, अगर H एटम्स पूछा तो. And if I put that into a container at STP, how much volume it will occupy? 22.4. How much volume it will occupy? 22.4. Clear? ये मैंने लिखवाया हुआ है आप लोगों को. Is this clear to all of you? Yes. How to apply this? Now, how to apply? This is very important. Please pay attention. How to apply this in numerical? I am going to do that. How to apply how to apply this in numerical? That I am going to teach you. Ashmi Nandu, सबका बंधु, are you there beta? How to apply this? I am going to teach you now. Look here. This should be clear in your mind. Now I have taken your hydrogen. Suppose if I give you carbon dioxide, 1 mole of carbon dioxide. Whenever I give you 1 mole of carbon dioxide, so first it will be corresponds to its molecular weight. So how to find molecular weight? This. Now in this, how many carbon dioxide molecule are there? Then this much. अश्मी बेटा, इसमें कार्बन एक ही था ना, तो इफ आई से कार्बन एटम कितना है, तो 1 into this. ये how many oxygen atom were there? 2. So how many oxygen atoms will be there?
2 into 6.023 to 10 to 10। और ये सबको बेटा मैं अगर कंटेनर में डालूंगा तो हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई 22.4 dm cube at STP। But if it is a salt, now look beta, till now all gases were there. But if I take a salt, MgCl2 is not a gas, it is a salt. So 1 mole of this if I take, then it will be equal to its molecular weight. How many, acha, now in this salt beta, how many magnesium chloride will be there? 6.02 into but in magnesium chloride, do you know beta, there is magnesium ion and chloride ion. How many chloride ion are there? 2. And magnesium ion is 1. So if I say how many magnesium ion, so 1 into. If I say how many chloride ions, so 2 into. Here volume will not come. Why volume will not come? Because it is a solid. Clear? Any difficulty till here? Now I am giving you the numerical. I'll give you the relation of all and then we'll do the board problems. How the numerical will come in exam. Chalo. Ashmi beta, you have to tell me this. Am I audible, Ashmi beta? Hello. अरे अश्मी, नंदू वाली नहीं, कोई बात नहीं। What is written here? Moles and here it is given बेटा grams। तो बेटा कौन सा रिलेशन हम लोग को यूज करना है? मोल एंड मास। ग्राम में क्या होता है? मास होता है कि नहीं बोलो? यहाँ पे मोल पूछा है। 1 मोल होता तो क्या होता? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन होता। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन हम लोग ढूंढ सकते हैं 2 into H, 2 into 1, 2 ग्राम। 1 मोल होता तो 2 ग्राम होता। अभी पूछा कितना है? 4 ग्राम होगा। 4 ग्राम होगा तो हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आंसर विल बी 2 moles। इजी? आर यू ऑल गेटिंग इट? से यस और नो? अरे कोई तो बोलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, अगर पूछा रहता फाइन मास। चलो पहला वाला सम मैं कर रहा हूं। यहाँ पे भी पढ़ने का बेटा, सम पढ़ने का। यहाँ पे क्या बोला है? मास। यहाँ पे क्या बोला है? मोल। तो विच रिलेशन विल यूज? मोल एंड मास। 1 मोल होता तो RMM होता था कि नहीं बोलो? अच्छा, सम में कभी भी हाइड्रो ऐसा वर्ड फॉर्म में देगा हाइड्रोजन, बट वेन एवर बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा तो विल टेक इट एज H2। आर यू गेटिंग इट? मोल और मास। तो हाइड्रोजन में कितना होगा? 2 into 1 तो 2 ग्राम। 1 मोल होता तो 2 ग्राम। अभी पूछा कितना है? देयरफॉर अगर 1.5 मोल होगा तो कितना? क्लियर? तो आंसर विल बी 1.5 into 2 upon 1, so that will be 3 grams। इजी? नाउ हियर क्या पूछा है? पढ़ो सब में। मॉलिक्यूल्स, नंबर एंड मोल। पढ़ने का सब। मोल और नंबर पूछा है तो विच रिलेशन विल यूज? मोल एंड पार्टिकल्स। याद आ रहा है कि नहीं? 1 मोल होता तो कितना पार्टिकल होता? 6.023 इंटू 10⁻23 होता। अब पूछा कितना है? देयरफॉर अगर 2 moles होगा तो कितना? यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस, नो नीड टू मल्टीप्लाई if it is in terms of Avogadro number। Easy? Are you all getting it or not? Tell me. Hello. Easy? Chalo, let us go to the next sum. Dan. What is given here? सम पढ़ने का पहले वी विल रीड द न्यूमेरिकल। फाइन वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा और क्या दिया? मास। और STP लिखा रहेगा हमेशा। तो मास और वॉल्यूम लेते। अभी RMM होता किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो किसी का भी बेटा RMM होगा तो इट विल ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम? 22.4 लीटर। RMM ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन फाइंड, राइट? तो 44 ग्राम होता तो 22.4 होता। अब पूछा कितना है? हाउ मच देवास? देयरफॉर अगर 22 ग्राम होगा तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। 22 इंटू 22.4 अपॉन 44। तो आंसर क्या हो बेटा? ये देखना, ये हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ होगा डायरेक्ट, ऐसा सोचने का।
11.2 liters. I hope all of you are getting it. Any difficulty till यार? No, sir. ओके, अब बेटा इसको अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में? अच्छा चलो एक ये वाला भी कर देता हूं मैं, चलो। यहाँ पे क्या पूछा था बोलो बेटा? फर्स्ट लेट अस रीड द सम. व्हाट वाज आस्क्ड? What was asked? Let us see. Find volume of occupied by this much. तो वॉल्यूम पूछा है और क्या पूछा है? पार्टिकल्स. तो व्हाट रिलेशन आई एम गोइंग टू राइट? वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स. वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स. नाउ यू ऑल नो बेटा 22.4 लीटर होगा तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता. अब दिया कितना है बोलो? 12.046 इंटू 10⁻23 दिया है तो कितना? ये इसका डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा बेटा. क्लियर? लुक, 44.8. इजी. नाउ हाउ टू अप्लाई दिस इन एग्जाम? दैट वी आर. अच्छा, समटाइम्स बेटा दे विल गिव यू द एवोगैड्रो नंबर का वैल्यूज. हाँ बेटा, इंस्टेड ऑफ 6 पॉइंट दे विल गिव यू 6 करके दे देगा. चलो बेटा अभी इधर पे आप मेरे को बताओ. ये वाला सम आपको करना है. कौन सा वाला? ये बहुत अच्छा सम है, दिमाग लगाओ थोड़ा. टन टन. फोर्थ वन. हाउ विल यू डू दिस फोर्थ सम? मन में सोच लो पहले क्या दिया है बोलो बेटा. रीड और रीड. अरे पढ़ो सम. सम पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या दिया है? मास. और यहाँ पे क्या दिया है? लीटर में क्या होता है? वॉल्यूम. तो अभी तुमको एक दिमाग में आया कि नहीं? विच रिलेशन आई एम गोइंग टू यूज? मास एंड वॉल्यूम. इतना समझ में आया? अब आप मेरे को बताओ, RMM होता, कोई कंपाउंड का नाम नहीं दिया है ना बेटा, RMM होता तो वॉल्यूम कितना होता? 22.4. RMM नहीं दिया है, लेकिन अभी क्या पूछा है बोलो? 32 ग्राम कितना ऑक्युपाई कर रहा है? 20 लीटर. 20 लीटर होता तो कितना ऑक्युपाई कर रहा था? 32 ग्राम्स. तो अभी आपको क्या करना है? RMM ढूंढने को बोला है वो लोग ने. देखना बेटा, दिया है ना बेटा. अरे मॉलिक्यूलर वेट यू हैव टू कैलकुलेट और नॉट? टेल मी. तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. देयरफॉर RMM विल बी व्हाट? 32 इंटू 22.4 बराबर अपॉन 20. आर यू गेटिंग इट? हेलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो. हियर RMM ओनली वाज नॉट गिवन, सो RMM ढूंढने को बोला तो RMM को विल राइट इट एज RMM. आर यू ऑल गेटिंग इट? टेल मी. एनीबडी, एनी Yes. डाउट? No. ओके, वेरी गुड. देन बेटा, अरे यार कहाँ पे गया ये? यहाँ पे था ना. अगर किसको चाहिए तो बेटा इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो एक मिनट. हाँ, क्लियर? ओके, नाउ चलो. आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस ऑन योर ओन. आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस. ठीक है? यू आर गोइंग टू डू दिस. You are going to do this sum. Okay, I am not going to teach you all anything from this. Sorry, my way. Hey, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, दिस इज गोइंग ऑन ऑटो म्यूट. आई नो डोंट व्हाट सम. हेलो. Yes, sir. अभी आ रहा है. हाँ, चलो डू दिस सम ऑन योर ओन. दिस वन. हाउ विल यू डू? ओके, फर्स्ट क्या बोला है? 68 ग्राम ऑफ अमोनिया STP. फर्स्ट क्या पूछा है? वॉल्यूम. तो कैसे करोगे बेटा बोलो? विच रिलेशन यू यूज फॉर फर्स्ट?
Mass is equal to volume. वेरी गुड, मास एंड वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट के लिए। तो कैसे करोगे बेटा मास एंड वॉल्यूम? तो आरएमएम, आरएमएम किसका? अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला आना चाहिए NH3। तो कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। इजी। नाउ देख, दे हैव गिवन दिस, तो फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट ना। आरएमएम कितना होता है अमोनिया का, बोलो। एन एक है, 3 हाइड्रोजन है, तो कितना मिलेगा बोलो? 17. 14 + 3 × 1, 17। तो 17 ग्राम होता तो 22.4 होता। अब कितना दिया है? देयरफॉर दिया कितना है सब में पढ़ो ना, 68 होगा। 68 होगा तो कितना? अरे बेटा ये देखना, इसका 4 टाइम्स है ना बेटा। अरे समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टी, ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है तो इसका भी 4 टाइम्स होगा। तो 4 टाइम्स कितना होता है? 89.6 लीटर। क्लियर? या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो। चलो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड क्या पूछा है आपको, बोलो बेटा। मोल, तो कौन सा रिलेशन यूज करोगे? मोल। और दिया क्या आपको? मास दिया है ना, तो मोल एंड मास। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 Yes, मोल sir. होता तो आरएमएम होता था कि नहीं, बोलो। आरएमएम कितना है? 17। अब पूछा कितना है? 68। तो 68 ग्राम होगा तो कितना मोल? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये भी 4 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 4 टाइम्स होगा ना, तो 4 मोल्स। इजी। अरे एग्जाम में सम कैसा आएगा अभी समझा, अप्लाई कैसे करने का आ रहा है कि नहीं, बोलो। लास्ट पार्ट क्या पूछा है, बोलो। वॉल्यूम। तो देखना ने, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एंड मास, तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? मास एंड नंबर। ओके, आरएमएम होता तो 6 Which chapter is this? दिस इज मोल्स, वी आर डूइंग मोल, मोल ओनली। Organic. दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, व्हाट मैन, दिस इज स्टोइकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट। तो Chemical 17 bond. Sir, ग्राम Bade हो, is asking such questions. 17 ग्राम, तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे? आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. तो 17 ग्राम होता तो इतना होता, तो हाउ मच दे वाज इन द सम? अरे 68। तो 68 होता तो कितना होता बेटा? तो ये भी 4 टाइम है, तो 4 × 6.023 आता आपको। आर यू गेटिंग इट? चलो अभी मैं तुम्हारे स्कूल के पेपर से सम बता रहा हूं। डन ऑल ऑफ यू? डन डन डन। नाउ आई एम गोइंग टू योर स्कूल पेपर। School paper I am going to open. Which one I am going to take? Come on, I'll take first your terminal paper. Oh, I opened your terminal paper. Come on, bro. Okay, first I'm doing your terminal paper, bro. In this terminal paper, yeah, you this one. Oh, come on, man. This second one. You have to decide. Chalo, who has the largest number of atoms? They've asked. Must the question atoms. They have given this. तो बेटा विच रिलेशन, यहाँ पे मास दिया है, तो विच रिलेशन विल यूज फर्स्ट फॉर लिथियम? मास एंड एटम्स। तो लिथियम का एक का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 ग्राम होता। एक एटम देखना दिया है ना बेटा, तो कितना एटम होता? 6.023 × 10⁻23 होता ना। हमद देवास 7 ग्राम, देयर फोर 7 ग्राम होगा तो कितना होगा? सेम ही आंसर आएगा कि नहीं, बोलो। तो व्हाट इज माय आंसर? नाउ दे आर टोल्ड 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो आई एम गोइंग टू टेक मैग्नीशियम एन एटम। तो पहला मैग्नीशियम में कितना होता था, बोलो बेटा। कम ऑन। अरे एक है, कितना है बोलो? 24 ना। 24 होता तो कितना होता? 6.023 × 10⁻23 होता। बट आई मोहम्मद देव आस्क्ड 48। 48 होगा तो कितना होगा? कम ऑन, क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे ये डबल हो रहा है तो डबल आएगा ना आंसर। नाउ थर्ड, ए मैंने ढूंढ लिया, बी ढूंढ लिया। अभी सी में क्या दिया है? सी में बी केयरफुल, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अच्छा बेटा, लाइफ में क्लोरीन कैसा होता है? Cl2 होता है या Cl होता है? टेल मी। Cl2 होता है। क्लियर है कि नहीं? Cl2. हाँ, तो यहाँ पे मैं मास लिखूंगा, और यहाँ पे मेरे को वो लोग ने क्या बोला है? एटम बोला है, एटम।
तो Cl2 का तो मास कितना होता था, Cl RMM अगर मैं लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता था बोलो बेटा? तो यहाँ पे मेरे को मॉलिक्यूल मिलता था कि नहीं? पहले मॉलिक्यूल में लिख देता हूँ, नंबर ना बेटा। RMM कितना होता है? Cl2 मतलब कितना होगा? 2 × 35.5, दैट इज 71 ग्राम होगा। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन आई विल गेट? 6.023 × 10⁻23 क्लोरीन मॉलिक्यूल। बट वो लोग ने पूछा क्या मेरे को? एटम। तो एटम कितना है अंदर बोलो? एटॉमिसिटी इज हाउ मच? 2 ना। देयरफॉर 2 × 6.023 × 10⁻23 एटम्स। तो ये सी पार्ट हो गया। अभी डी पार्ट करते हैं। डी में क्या दिया है देखते हैं। डी में दिया गिवन 4 ग्राम और हाइड्रोजन लाइफ में देख, ये Cl2 होता था, हाइड्रोजन H2 होता है। तो मैं क्या लूंगा बोलो बेटा? मास एंड नंबर। नंबर कितना था बोलो बेटा? हाइड्रोजन का RMM कितना होता है? RMM ऑफ H2 तो कितना होता था? 6.023 × 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स होता। बड़े वो लोग ने मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, एटम। अच्छा, 2 मतलब कितना होता है? H2 मतलब 2 ग्राम होता तो इतना होता। अभी दिया कितना है? हाउ मच दे आस्क्ड? 4 ग्राम्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये डबल हो रहा है तो ये डबल डबल हो जाएगा। 2 × 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। बट दे हैव आस्क्ड व्हाट बेटा? एटम्स। कितना एच है अंदर? 2 ना। तो इसको, ये मॉलिक्यूल था बेटा, एटम चाहिए तो और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, ये पूरे को वापस में किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो आंसर विल कम व्हाट? 4 × 6.023 × 10⁻23 एच एटम्स। तो सबसे ज्यादा किस में आया बोलो बेटा? अरे इसमें कितना आया था? 6.023 आया था। इसमें 2 D. × 6.023, इसमें 2 × 6.023, इसमें कितना आया? 4 × 6 तो आंसर क्या होगा? डी, डॉग। अंडरस्टूड? ये थोड़ा घुमा के पूछा था हम लोग ने। क्लियर? Sir, अरे can you से explain यस how? और नो चाहिए तो Yes. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? Sir, हाइड्रोजन का वापस समझाओ ना। वापिस कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा मेरे को बता? डी पार्ट हाइड्रोजन। डी पार्ट ना? अच्छा अच्छा। सम में क्या पूछा है तूने देखा? व्हाट देव आस्क्ड? अरे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स ना। अच्छा, हाइड्रोजन का हम लोग लेते हैं। अगर हाइड्रोजन का क्या डी पार्ट में ले रहा हूं, हाइड्रोजन इज मास, और यहां पे हम लोग ने नंबर ले लिया। तो आपको पता है नंबर में हम लोग पहले क्या लिखते थे? मॉलिक्यूल्स लिखते थे ना बेटा। चलो, RMM ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बोलो बेटा? 2 ग्राम। 2 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होता था बोल? इतना होता है, बरोबर है कि नहीं? H2 मॉलिक्यूल। हाँ। लेकिन पूछा क्या तेरे को? एटम्स। तो दैट इज कितना एटम होता बोल मेरे को? 2 × एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? H एटम्स हो गया, बराबर है, वो मॉलिक्यूल था। अब तेरे को पूछा कितना है? हाइड्रोजन कितना दिया है सब में? टेल मी। 4 ग्राम। हाँ, तो देयरफॉर 4 ग्राम होगा। तो कितना एटम होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो क्या आएगा तेरे को? 4 ओके। × 2 × 6.023 × 10⁻23 अपॉन 2। तो 2 2 कैंसल, तो तेरा आंसर क्या बचा? 4 × 6.023 आया कि नहीं बोल? क्लियर है? यस। हाँ अगर सर। सिर्फ एटम होता तो एक ही लेते हैं। एटम पूछा है ना इसके लिए। हाँ, मॉलिक्यूल होता तो फिर हम लोग का नॉर्मल करते हम लोग। क्लियर? यस। राइट? अरे ये क्या हो गया? ओके, एक बच्चे ने किसने सम पूछा है बेटा? देखते हैं, देख, ये दिख रहा है तुमको? हेलो, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस? Yes. Yes. व्हाट इज आस्क्ड दिस?
relative atomic mass of hydrogen is the, this means that dash of nitrogen has same mass of that of hydrogen. चलो कैसे करोगे? चलो भाई, रिया बेटा, इफ आई टेक वन एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट इज हाउ मच बेटा? 14 ना. सो हियर व्हाट आई राइट, एटम ऑफ नाइट्रोजन. एटम मतलब कितना हो जाता है? ये पूरे का वेट कितना हो जाता है बोल बेटा? 14. ठीक है ना? वही विच वर्ड इज करेक्टली है. अच्छा, और हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है? व्हाट इज द वेट ऑफ वन? अरे यार ये क्या हो रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? H2 ना बेटा. H2 मतलब कितना होता है? 2 ग्राम्स. तो तुझे कितने ऐसे H2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा बेटा? 7 ना. तो व्हाट विल बी द आंसर? 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज 7 into 2 करते तो आंसर 14 आता था कि नहीं? तो कौन सा तेरा करेक्टली मैच हो रहा है? बी. अंडरस्टूड रिया? हेलो? ओके. या चलो, now we are going to go for the next sum of your paper. Hello school paper. अरे हाँ बेटा, करने देना बेटा. कालकास अभी मैं करवाता ना, बस मेरे को स्टोइकोमेट्री करवाने दो और इसका एप्लीकेशन देख लो ना बेटा. चलो बेटा, ये अभी कैसे करोगे बताओ? हाउ विल यू डू दिस सम? बिकॉज आप लोगों को एप्लीकेशन नहीं आ रहा है बेटा, तो मैं तुमको बोर्ड का में कैसे सम आएगा वो बता रहा हूँ ना तुमको. सर ऑप्शन बी. 6.023 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो बेटा ये मॉलिक्यूल दिया और वॉल्यूम पूछा है, तो हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? नंबर एंड वॉल्यूम. याद आ रहा है कि नहीं? तो नंबर एंड वॉल्यूम में बेटा हमारा क्या था? 6.023 इंटू 10⁻23 होता. तो कितना होता था? 22.4 लीटर. और पूछा भी कितना है? उतना ही पूछा है कि नहीं? देखो बेटा, ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा? 22.4. इजी. ये अश्मी, कैसे अप्लाई करने का वो आ रहा है कि नहीं? दिमाग चल रहा है कि नहीं? ये वाला करो चलो. चल 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 चल, कम ऑन. ये वाला करो, 10th वाला. कैसे करोगे? मन में सोचो सब लोग. नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. एटम दिया है, एटम. तो बेटा व्हाट आई एम गोइंग टू राइट? मोल एंड मास. 1 मोल होता, 1 मोल होता. ठीक है ना बेटा? 1 मोल होता तो कितना होता था बोलो बेटा? हेलो, 1 मोल. तो RMM होता था कि नहीं? बोलो ना भाई. RMM of O2. लेकिन वो मॉलिक्यूल होता था कि नहीं? तो कितना होता था बोलो? अरे 2 into 16, तो कितना होता था? 32 ग्राम्स. 1 मोल में कितना होता था? 32 ग्राम्स. अभी वो लोग ने दिया कितना है? अरे बोलो भाई, दिया कितना है? 8 ग्राम ना. हेलो. Yes. हाँ, ये ओके लेकिन क्या सर. दिया बेटा? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है बेटा. तो मॉलिक्यूल्स, अरे बेटा O2 मॉलिक्यूल है कि नहीं? बोलो. हेलो. क्या यार? अच्छा, अभी अपने को पूछा गया यहाँ पे एटॉमिक मास. मैंने तुमको ये भी बोला था कि नहीं? बोलो. अरे यार ये क्यों नहीं बोल रहा है? वेट. यहाँ पे वो लोग ने एटॉमिक मास पूछा है कि क्या पूछा? मास ऑफ एटम बोला है ना बेटा. तो हम लोग ने पढ़ा था ना, 1 मोल इज RAM ऑल्सो और नॉट. टेल मी इफ इट एटम इज आस्क्ड. तो एक एटम का कितना है ऑक्सीजन का? 16. पूछा कितना है हमको? 8 होगा तो कितना? तो आंसर कितना हाँ. होगा? 0.5. क्लियर? अरे अपना रिलेशन में हम लोग ने सबसे पहले क्या लिया था? तुम लोग भूल जाते हो. सर ये सब बहुत आसान है। आई विल टॉप दिस टाइम। अरे वाह, एक नंबर बेटा. आंखों में आंसू आ गए बेटा. वेरी नाइस. बहुत आसान है ना? वेरी यस गुड. सर, मेहता टॉप करेगा. और आपकी 80 on 80. वर्कशीट सर इससे मेरे बाहर मार्क्स है, तो आने बहुत दो, बहुत हार्ड। आंसू आने बाकी है वर्कशीट मैंने, आपके। सुनो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. प्लीज लेट मी टेल यू बेटा. मैंने आपको 10 बार बोला है, वो मैंने आपको जो नोट्स दिया उसमें से कोई भी क्लास वर्क और होमवर्क सब नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड क्वेश्चंस देखना है. अरे सर,
तो सर तो उस लेवल के सम्स नहीं आएंगे ना। नहीं, मैंने 10 बार बोला था, तुम लोग सुनते नहीं हो क्लास हाँ में। ठीक है, सॉरी। क्लास में तुम लोग सुनोगे नहीं तो क्या करेगा बेटा? अरे वो मोल एवोगैड्रो किधर गया? वो एवोगैड्रो, अरे वो मोल मेरा गया। हाँ ये, अरे बेटा ये तुम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था ना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 1 मोल कैन बी आइदर मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, वो वाला मैंने रिलेशन यूज किया। ठीक है। अब चलो बेटा, ये वाला सम करने का है। अभी देख, ये वाला कैसे करोगे बेटा? बहुत मस्त सम है। देख, क्या दिया है तुमको, मैं तुमको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कैसे करने का, ये देख। ठीक है, ये देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है CH2, मॉलिक्यूलर मास इज 180। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढो, तो एम्पेरिकल वेट ढूंढ सकते हो कि नहीं इससे? सर बी, सर हाँ। ऑप्शन बी। हाँ, तो एम्पेरिकल वेट पहले ढूंढ लेते ना, सबको बताने तो दे। एम्पेरिकल So वेट कितना 30. होगा? 12 + 2 + 16 कितना हो रहा है रे बे? 30। बरोबर है। और मोलार मास दिया, तो एन का, एन अभी ढूंढेगे कि नहीं? एन इज व्हाट? अरे यार, RMM अपॉन एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल वेट इज हाउ मच बेटा? 30। तो एन का वैल्यू कितना है यहाँ? 6। अभी तेरे को क्या बोला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट बेटा? एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन कितना है यहाँ? 6। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया है? CH2O। तो कितना हो जाएगा बोलो? C6H12O6। इजी। Yes, sir. ठीक है, तो देखो, इसलिए मैंने बोला था ना ऐसे समझाएंगे। ये देखो बेटा, ये आ जाओ आ जाओ, इसको अप्लाई करो चलो। तुम्हारा लास्ट ईयर का ही पेपर में करवा रहा हूं, टर्मिनल का। हाउ टू अप्लाई दिस? नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2। तो क्या क्या दिया बोल बेटा? सो मोल, दे हैव गिवन अस द मास। 1 मोल होता तो RMM होता। RMM SO2 का करोगे तो बेटा 64 आएगा। तो 1 मोल होता तो 64 ग्राम। पूछा कितना है? 6.4, तो कितना? तो 0.1। फिर दूसरा क्या पूछा? वॉल्यूम और ग्राम दिया है, तो हम लोग क्या करते थे बोलो बेटा? मास एंड वॉल्यूम। आपको पता है RMM होगा तो कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर होगा। RMM कितना होता है? 64 ग्राम। सब में पूछा कितना है? 6.4 ग्राम, तो कितना? 2 4. बेबी, तो 2.24। इजी। देख बेटा, मैं तुम्हारे सम्स बता रहा हूं, मैं कुछ नया कर रहा हूं क्या? इल्ले, न न, तुम्हारे स्कूल के ही पेपर है ये पूरा। ये देख, ये वाला करो। ये भी आएगा कि नहीं? वॉल्यूम ऑक्युपाइड 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इजी ना बेटा? अभी चलो बेटा, अभी डायरेक्ट स्टोइक्योमेट्री में जाते हैं। अभी ये वाले सम आ जाएंगे ना बेटा, फिर मैंने आपको तुमको ये भी बोला था कि ये वाला एक सम आया था। किधर गया? ये देख, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बैंड जी। बैंड जी क्या था? C6H6। तो कितना हो जाएगा रेशियो? कट कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा? CH। इजी। हेलो। यस सर। यस सर, वेरी इजी। वेरी इजी ना बेटा? देख, अभी ऐसा सम भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। अभी वो लोग ने देख यहाँ पे ऐसा दे दिया 1 ग्राम ऑफ, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मैं तुमको बताता हूँ। हाइड्रोजन का बेटा कितना होता था? मोलार मास 2 ग्राम 22.4 ऑक्यूपाई करता, तो 1 ग्राम करेगा क्या? इल्ले। नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन का कितना होता था? N2 22.4 करता। N2 मतलब कितना हो जाता है? 28 22.4 करता, तो 14 कितना करता? हाफ करता। तो 22.4 होगा क्या? नहीं। हीलियम, हीलियम का मास ही 4 है, और हीलियम 22.4 ही करेगा। ऑक्सीजन का कितना दिया था? 16। ऑक्सीजन का O2 22.4 करता था, मतलब 32 होता तो 22.4, तो 16 होगा तो कितना होगा? 11.2। तो आंसर आपका क्या होगा? बी, हीलियम। ना बेटा, जो भी हम लोग ने मोल पढ़ा ना, वो स्टोइक्योमेट्री में कैसे अप्लाई करने का वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। किसमें? स्टोइक्योमेट्री में कैसे करने का वो मैं बताता हूं। अच्छा, ये वाला सम कैसे करने का? कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर डेंसिटी पूछा है, तो मोला RMM आप ढूंढ सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का। अरे इससे मिल जाएगा ना बेटा, तो कितना आएगा? 44। अब आपको क्या बोला है? वेपर डेंसिटी। RMM इज इक्वल टू वॉट? 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
आ जाएगा कि नहीं बोलो? तो वेपर डेंसिटी विल बी व्हाट? RMM अपॉन 2। RMM अपने को कितना आया? 44 अपॉन 2, तो 22। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू अप्लाई दिस इन स्टोइक्योमेट्री। देखो बेटा, स्टोइक्योमेट्री में आपको ऐसा सम आएगा बेटा, स्टोइक्योमेट्री में ये वाला सम आप पढ़िए ना प्लीज। फिफ्थ वाला सम पढ़ो अच्छे से, और इक्वेशन दिया होगा आपको, इक्वेशन दिया होगा। फिफ्थ वाला सम देखो, जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा ना वही मैं करवाने वाला हूं, ठीक है? हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। बेटा आज हम लोग गेल लुसेक शायद नहीं कर पाएंगे, बट आई विल डू इट टुमारो मॉर्निंग, डोंट वरी, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव सो मेनी थिंग्स टुगेदर, बट विल डू दिस टॉइकियो फर्स्ट पूरा अच्छे से। कैल्शियम ऑक्साइड, अरे ये पढ़ो ना बेटा, क्या क्या दिया है? कैल्शियम नाइट्रेट दिया है, और क्या बोला है ढूंढने So के लिए? will it be 44.8 liters? ये दिया है, और वॉल्यूम ऑफ Na2। तो बेटा अभी जब भी सम आएगा तो आपको वॉल्यूम और मास पूछा है, मतलब ये एवोगैड्रो से, मास आया मतलब एवोगैड्रो से रिलेटेड नहीं है। ये क्या है बेटा? स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री में आपको ना बैलेंस इक्वेशन दिए दिया है। तो बेटा किसका मास दिया है? कैल्शियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले साइड में हम लोग RMM ढूंढ लेने का। कैल्शियम नाइट्रेट का आप RMM ढूंढ पाओगे? बोलो ना। देखना ये सब दिया है ना बेटा, इससे आप लोग है ना RMM 1 ढूंढो। हाँ, तो कितना आएगा बेटा आपको? अरे ये 40, नाइट्रोजन कितना है? 2, तो 28, और ये कितना है? 2 × 3, मतलब 6 × 16, 96। ऐड करोगे तो कितना होगा ये बोलो? 164। 164, वेरी गुड। अब बेटा सब में पढ़ने का, तेरे को क्या क्या पूछा है? कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछा, और कैल्शियम नाइट्रेट का क्या दिया है? मास दिया है। तो देख इसमें से हम लोग ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे, किसको? इसको और इसको। और इसके आगे देखिए, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइक्योमेट्री में नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका भी क्या पूछा है? मास, और कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास। तो मैं क्या लिखूंगा? देख पहला मैंने इसके आगे क्या लिखा हुआ था? 2, और कैल्शियम नाइट्रेट ये लिखा हुआ था, सब में से मैंने उठा दिया। इसके आगे भी क्या लिखा था? 2, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये दोनों के, इसका भी क्या पूछा है? मास, और इसका भी क्या पूछा है? मास। तो 2 × मास में लिखता, तो इसका भी मैं क्या लिखता? 2 × मास। मास में भी पहले हम लोग क्या लिखते हैं? RMM, RMM। तो इसका भी क्या होता? RMM। कैल्शियम ऑक्साइड का RMM ढूंढ सकते हो कि नहीं? कैल्शियम और ऑक्साइड, कैल्शियम इज 40, ऑक्सीजन इज 16, P56। तो इसका इसके लिए ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाला 2 × कितना आता था बोलो बेटा? 164। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना आया बोलो? 56। अब पूछा कितना है? अरे कितना कैल्शियम नाइट्रेट दिया है? 82। हाउ मच कैल्शियम नाइट्रेट इज गिवन? 82। तो अब आप यहाँ पे 82 कर, लेकिन प्लीज अब जो जो सम में दिया रहेगा ना उसके आगे ये नंबर नहीं आएगा। प्लीज सम में जो दिया उसके आगे नंबर नहीं लेना है। देयरफॉर अगर 82 होता तो ये कितना, ये पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 82 × 2 × 56 होल थिंग अपॉन 2 × 164। बेटा ये 2 * 82 होता, ये 82 82 कैंसल, ये 2 और ये 2 28, तो आंसर होता है 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सर वो समझा? 2 से एवोगैड्रो में डालना रहता है ना? हाँ, 2 एवोगैड्रो में नहीं बेटा, अरे बेटा एवोगैड्रो में भी नहीं, अरे सब में अगर यहां पे होता तो 2 होता, इसमें नहीं आएगा। अरे एवोगैड्रो में तो हम लोग ने कहा ये 2 लिया ही था, ऐसा इक्वेशन नहीं था ना। अभी देख दूसरा क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका पूछा है? NO2, और अपने को दिया गया है कैल्शियम नाइट्रेट। तो अभी मैं इसमें से क्या उठाऊंगा बोलो बेटा? इक्वेशन में से मैं क्या उठाऊंगा? कैल्शियम नाइट्रेट और NO2। इन लोग के आगे का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं क्या करूंगा बोलो? 2 × कैल्शियम नाइट्रेट, और यहां पे क्या लिखूंगा? 4 NO2। बराबर है कि नहीं? कैल्शियम नाइट्रेट का क्या दिया है सब में? मास। यहाँ पे क्या दिया है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो पूछा है वो डालने, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा था ना। ये नंदू समझ में आ रहा है? अच्छा, मास मतलब कौन सा होता? RMM। RMM होता तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता? 22.4 लीटर। तो RMM कितना है इसका बोलो बेटा? 2 × 164। 164 होता तो 4 × 22.4 होता। अभी पूछा कितना है? पूछा कितना है बोलो? 82। देयरफॉर अगर ये 82 होता तो ये कितना?
अब समझा क्या, बोलो ना। इजी। तो बेटा ये तेरा कट हो जाएगा, टू टू जार, ये टू टू भी कट हो जाएगा और ये फोर कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 22.4 लीटर। चाहिए तो इसका आप लोग एक फोटो ले लो, मैंने ये सब सॉल्व कराया हुआ है पहले भी, फिर भी फोटो चाहे तो ले लो। दिस वॉज अवर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज अवर सेकेंड पार्ट। क्लियर? बोलो रे। यस सर। ये यस आज सर, वेरी। ये आज रात का आप लोगों का क्या प्लान है? रात को बाहर जा रहे हो? नहीं सर। नहीं नहीं, मैं कल ही लूंगा बेटा, जाने दो, आज है ना, बहुत लोगों का वीकेंड का प्लान होगा, मैं कल और लेने वाला। आर्यन क्या होता है? हाँ सर प्लीज कल ही लो सर। हाँ, कल ही लूंगा। सर आर्यन आरएमएम का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट सेम ही होते हैं ना, आरएमएम। क्या कुंज। ठीक है। सर मीटिंग में 3 गुंज है। हाँ जाने दो, 3 होने दो, 10 होने दो, अपने को कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ आज आपको स्टोइक्यू कराऊंगा, ये एवोगैड्रो मेरा मैं कल कराऊंगा, लेकिन अभी बेटा आ जाओ, अभी और तुम्हारे पेपर के क्वेश्चंस उठाते हैं। तुम्हारा सर सारे कुंज के मार्क्स कंबाइन करके सने से कम होगा। हाँ, एवीएम का भी पेपर मैं तुमको जी। करवाता हूँ ना, तुम्हारा टर्मिनल का। इसमें बेटा वो लोग ने स्टोइक्यू वाला सम दिया है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। इसमें स्टोइक्यू वाला सम, इसमें स्टोइक्यू वाला सम, इसमें स्टोइक्यू वाला सम इसमें है तुम्हारे ये वाले पेपर में। कोई बात नहीं, बहुत सारे पेपर है, बैंड्रा ईस्ट का ले लेते हैं, ये ले। सर सारे एवीएम सेम पेपर लिखते हैं टर्मिनल के अरे लिए। जो भी देगा भाई, अपन तो ले लिया है सब तुम्हारा पेपर। ओह वाह, ब्यूटीफुल। ये वाला सम कैसे करेंगे? अथर्व, याद आ रहा है? ये अथर्व वाला सम है बेटा। क्या क्या पूछा है, पढ़ो ना। ये नंदू, अस्मी, आ रहा है कि नहीं? देख डिकम्पोजिशन ऑफ, देख इक्वेशन दे दिया है। पहले तेरे को किसका वेट दिया है? पोटेशियम क्लोरेट का वेट दे दिया है, मास दिया है, मतलब ये तुम्हारा गेलुसेक्स नहीं है। अब तेरे को क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ कलरलेस ओडरलेस गैस इवॉल्व, तो कलरलेस ओडरलेस गैस कौन है? ऑक्सीजन। और ये पोटेशियम क्लोरेट। चलो चलो, तो इसके आगे क्या लिखा है? पहला पार्ट 2KClO3। ऑक्सीजन के आगे क्या नंबर है? 3 3O2। KClO3 का क्या दिया है? मास दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा? 2 × मास। यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम जो पूछा है वो डाल देने का। अभी मास मतलब कौन सा मास हम लोग लेते थे? RMM। और वॉल्यूम कभी भी कितना होता है? 22.4। RMM हम लोग अभी ढूंढ सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा? अरे यार ये चश्मा वस्मा निकाल बे, किसने किया है? एक KClO3 का RMM हम लोग इससे ढूंढ सकते हैं बेटा। अरे एक K है, Cl है, 3 ऑक्सीजन है। ये 39 है, ये कितना है? 35.5, और ये 3 × 16। ये ऐड करेगा तो तेरे को 122.5 आएगा बेटा। इजी। तो चलो बेटा, तो 2 × 122.5 होता, तो 3 × 22.4 लीटर्स होता। अब पूछा कितना है? 490 होगा। प्लीज बेटा ये जब नंबर लिखोगे ना, उसके आगे कोई नहीं, गिवन वाले के आगे ये नंबर नहीं आना चाहिए, 2 समझा क्या? तो कितना? आ जाओ ना, अपॉन 2 × 122.5 बराबर है 122.5, और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 245। 245 ये पूरा कैंसिल होके 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6 × 22.4। कर पाओगे? 4 2 6 12, 1 6 × 2 12, 12 + 1 3, 134.4 लीटर्स। अब दूसरा क्या पूछा है बोलो? अबे दूसरा क्या पूछा है देखो ना, पढ़ो ना। वेट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, तो ये बचेगा कि नहीं? KCl। तो अब क्या लोगे? 2KClO3। और क्या लोगे बोलो?
KClO3 का वेट मास, इसका भी वेट पूछा है, मतलब मास। मास मतलब कौन सा होता? रममम, RMM। इसका भी क्या होगा? RMM। के कितना है? 39, और क्लोरीन कितना है? 35.5। तो कितना हो जाएगा? 5 4 1 कैरी 74.5। तो KClO3 का कितना दिया है भाई अपने को? RMM कितना मिला था? 122 पॉइंट। तो 2 × 122.5 होता, तो इसका कितना होता? 2 × 74.5। बराबर है। फिर अभी पूछा कितना है अपने को? 490। देयरफॉर 490 होगा तो कितना? तो 490 × 2 × 74.5 होल थिंग अपॉन 2 × 122.5। बेटा 2 × 122। सर इतना बड़ा सम 3 मार्क के लिए आ सकता हाँ, है? तो तुम्हारे स्कूल का ही पेपर है, हमारा कोई नया पेपर नहीं है मैन। सर भरोसा नहीं है। हमने कोई नया कुछ नहीं दिया है भाई, तुम्हारे स्कूल का पेपर ही मैं करवा रहा हूँ, और बोर्ड में भी ऐसे सम आते हैं। तो बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 74.5, 75 और 75 कितना होता था बोलो बेटा? 150। 150 में से एक कम कर दो तो 149 ग्राम। आ गया, ये बी पार्ट था। आपको चाहिए तो इसका फोटो आप ले सकते हो। ये गधा कौन है? ये सब ऐसा फालतूगिरी यहाँ पे कर रहा है, ये सब जाएगा नहीं ना इससे। समझ में आया क्या? स्टोइक्योमेट्री कैसे करने का आप लोगों को समझ में आ रहा है? आई विल गिव यू वन मोर सम। सर 298 होना चाहिए ना? कैसे 298? सर वन हाँ, वर्क। 2 है ना ऊपर का, 2 मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, माय बैड, माय बैड, वाओ। माय बैड। अच्छा ये देखो, ये 2 हो जाएगा, ये 245 और 2 2 × 2 4, 4 × 75 बरोबर है। 4 × 75 करते तो कितना होता है बोलो? हाँ, तो 298 ग्राम होगा। सॉरी, फिर से ले लो। ओके डन, डन 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 डन। चलो, अभी देख ये वाला स्टोइक्यो वाला ही बता रहा हूं तुम लोगों को। स्टोइक्यो बॉय, बैंड्रा वेस्ट में, ये लो। अरे स्टोइक्यो बॉय सम किधर गया? हाँ, लास्ट में था एकदम। Oh yo man, this one, can you see this? ये द एंड लिखा है ना, वो वाला सब क्या लिखा है? पढ़ो। देखिए 5 मार्क के लिए है सब। फॉस्फोरस है, नाइट्रिक एसिड है, ये है, ये है, ये है। ये देख, फॉस्फोरस का मास दिए दीजिए, मतलब ये तेरा रेफरेंस में आएगा। तो पहला मैं किसको लूंगा? फॉस्फोरस। ए पार्ट के लिए मैं किसको लूंगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आगे कोई नंबर है नहीं। फिर क्या बोला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। अरे फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरस ही पूछा है, तो फॉस्फोरस ही लेते। अच्छा मेरे को बताओ, इसका क्या पूछा है? पूछा क्या? मोल ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मोल। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? मास, क्योंकि इसका मास दिया है कि नहीं। ये 1 मोल होता तो क्या होता? फॉस्फोरस का मास कितना है? 31। अब दिया कितना है? 3.1 ग्राम होगा। 3.1 ग्राम होगा तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 0.1 मोल। समझा क्या? अरे बोलो ना। राइट। दूसरा पार्ट क्या दिया बोलो? व्हाट इज द बी पार्ट? कम ऑन। मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये रहा बेटा, और दिया अपने को क्या है? फॉस्फोरस। तो आई टेक फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड। किसी के आगे कोई नंबर है? नहीं है। तो बेटा दोनों का इसका क्या है? मास। ये भी मास। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? मास। यहाँ पे भी क्या था? मास। विच मास? RMM। तो इसका कितना है बेटा? इसका तो 31 ही है ना, एक का। ये अकेला फॉस्फोरस है ना। इसका क्या होता बेटा? आप करते तो आपको 98 आता बेटा, फॉस्फोरिक एसिड का। अभी पूछा कितना है? 3.1। देयरफॉर 3.1 होता तो कितना होता ये? तो आंसर क्या होता? 9.8 ग्राम्स। इजी।
लास्ट पार्ट क्या पूछा है? वॉल्यूम। और किसका पूछा? वॉल्यूम NO2। ये NO2 के आगे नंबर है, तो फॉस्फोरस और मैं क्या लेता? 5NO2। क्यों 5 आया, समझा? इसका क्या पूछा है? मास। इसका क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो ये 31 होता तो 5 × 22.4 लीटर होता। अब पूछा कितना है? 3.1 होगा तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई होल थिंग अपॉन 31। क्लियर है? इजी? कर पाओगे कि नहीं? टेल मी। यस सर। तो देखो, मैंने आज तुमको पूरा Yes, परसेंटेज sir. परसेंटेज सब बता दिया। खाली लाइट क्या नहीं बताया मैंने आप लोगों को? पता है क्या बेटा? व्हाट आई हैव नॉट टॉट यू? ओनली गे लुसेक्स। तो गे लुसेक्स में आपको बाद में कराने वाला हूं, लेकिन ये पहले समझा क्या? हेलो। फोटो हाँ ले लो सर। इसका। ये मैंने क्लास में भी कराया था, समझा ले सर आप लोग। ठीक है ना? ये देख बेटा, मैंने इस पे पीछे सोल्यूशन भी दिया, ये ले, देख ले, देख ले। किधर गया भाई? ये देख, फास्फोरस वाला दिख रहा है? मास फास्फोरिक एसिड का देख रहा है? 31 था तो कितना था? 98। तो 3.1 होगा तो कितना? 9.8। फिर वो मोल वाला, मास और मोल लिया था। फिर ये वॉल्यूम वाला दिखाई दिया, वॉल्यूम में तुमको 11.2 आएगा। या एनी डाउट? अस्मी, तेरे को अभी ये समझा क्या? नंदू, अश्मी नंदुरकर, कुछ ऐसा थम्सअप बम्सअप कुछ तो दिखा। कोई कुछ बता भी नहीं रहे ये लोग, क्या है यार, शे। हाँ। इसमें अभी आप समझे ना बेटा, कैसे सम्स आते हैं और आपको कैसे करना है। आपको पता है, मैंने ये वाला सम भी आपको कराया था, इफ यू रिमेम्बर, MCQ में। विच वन विल वे द मोस्ट? ये रहा, ये देख। विच ऑफ द फॉलोइंग विल वे द मोस्ट? देखिए, इसमें हम लोग वो सब अप्लाई करेंगे। 2 ग्राम एटम, तो 2 ग्राम एटम हम लोग कैसे ढूंढेंगे? बोलो बेटा, ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला था? बोलो। गिवन मास अपॉन, याद आ रहा है कि नहीं? गिवन मास अपॉन RAM। तो ग्राम एटम कितना दिया है? वो लोग ने ऑलरेडी 2 दे दिया है। गिवन मास पता नहीं, वही हमको ढूंढना है। अपॉन RAM ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। देयरफॉर गिवन मास कितना आएगा? बोलो। 2 × 16, 32। तो इसका 32 आया। अभी 2 मोल्स ऑफ NaOH, NaOH का 2 मोल्स, 2 × NaOH। सर इधर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं लेंगे? क्यों? तो पूछा क्या है? ग्राम एटम पूछा है ना? ग्राम है एटम। तो। अच्छा, 2 NaH। तो एक Na का कितना होता है? 23 + 16 + 1। तो ये करेगा तो तेरे को आएगा बेटा 80 ग्राम्स। फिर क्या पूछा है? 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और अपने को क्या करने का है? ढूंढने का मास। तो चल बेटा, मास और क्या करेगा? वॉल्यूम। RMM होता तो कितना होता था? बोल बेटा। 22.4। RMM कितना होता है? 44 CO2 का। अरे CO2 का मैं कर रहा हूं। तो कितना होता था? 22.4। अभी पूछा कितना है? 5.6। तो अगर 5.6 होगा तो कितना होगा बेटा? तो ये भी 1/4 है, तो ये भी 1/4, तो कितना आएगा? 11 ग्राम्स। लास्ट में ये बेटा, ये 10⁻20 दिया है, याद रख। तो अभी लास्ट डी वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ये सी था अपना। डी में क्या दिया? कार्बन एटम दिया है। तो बेटा हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है? नंबर। तो बेटा कार्बन का मास, और यहाँ पे क्या हुआ? नंबर। बराबर है कि नहीं? तो बेटा कितना दिया इसका? कार्बन का अपने को क्या बोला ढूंढने के लिए? मास। तो अभी तुमको पता है कार्बन का 12 ग्राम, 12 ग्राम होता तो कितना होता? 6.02। 3 × 10⁻23 होता। अभी लेकिन वो लोग ने दिया कितना है? 6.02। 3 × 10⁻20 दिया है। तो कितना? मतलब ये डिवाइड बाय 1000 हो रहा है, तो ये भी डिवाइड बाय 1000 होगा, तो कितना होगा? 0.012 ग्राम। कौन सबसे हैवी है? बोलो, कौन सबसे हैवी है? बी। 80 ग्राम ना, तो आंसर होगा 2 मोल्स। इसका भी एक फोटो चाहिए तो ले लो, ले लो। अप्लाई कैसे करने का आया कि नहीं आया? बोलो। कैसी पक्का?
चलो वेरी गुड बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? राइट, सो बेटा आई एम गोइंग टू एंड द क्लास. टुमारो आई विल डू योर मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, दिस थिंग, Gay-Lussac's law. ठीक है, टुमारो आई विल टेक 3 सेशन. वन विल बी Gay-Lussac's law, उसमें सबसे फर्स्ट सेशन में मैं वो करूंगा. देन इन आफ्टरनून आई विल डू आप लोगों को कौन सा दूसरा टफ लग रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा. और फिर इवनिंग में तुम्हारा हाँ नहीं, Chemical bonding. ऑर्गेनिक कराऊंगा. ठीक है, Yes, sir. सर हम लोग कल क्या करने वाले हैं? Periodic अब बता रहा हूँ. Gay-Lussac's law, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड देन बेटा एकदम इवनिंग में, एकदम रात में मैं ये नहीं, कल नहीं, संडे भी है ना बेटा. अरे वाह, तो अरे नहीं, संडे को नहीं, क्यों पे संडे अरे सर आपको काम करना. अबे वंश चुप बैठ. हाँ, तो संडे नहीं को मैं सर, अब तुमको संडे केमिकल को भी बॉन्डिंग और लो. पीरियोडिक करा कैसी दूंगा. बातें कर रहा है वंश, कैसी ठीक बातें है, हैं? चलो देन, बाय बाय. वंश तो क्या बोल Podcast रहा क्या है? क्या? Inshallah. बाय बाय. थैंक यू सर, बाय सर. बाय Thank सर, you. थैंक Sir, यू. thank you.